का सत निचोर, बोझ लाद वापस चली, जब हो आई सांझ, देह नगाड़े की खिंची, बजती 100 झांझ। फिर से चूल्हा फूंक चल, सबको रोटी सेक, ऐसे ही बीते सदा दिन तेरा हर एक। The sun looking down on the world is witness to the immensely hard work that poor working women are subjected to. Not the sun alone, but the moon and stars as well. Out of 24 hours, she works at least 17 to 18 hours. Besides household chores, she also has to work outside her home. Dialects and dress may differ, but from one corner of India to the other, everywhere, the conditions of all poor working women are much the same. This hunchbacked embroidery worker, who embroiders beautiful clothes for the rich, is known to all as Bua. Guess what her age is? She is much, much younger than you think. Constant needlework has pierced not just her fingers, but her heart as well. Bua's back is bent by her work and her difficult circumstances. If she were paid better for her labors, she would not have to work so hard. But लेकिन क्या होता है? काम नहीं करेंगे तो कुनबा कैसे चलेगा पूरा? घर हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ा है, हम भी मुंह फाड़ फाड़ कर रोने लगेंगे तो क्या होगा? बोलिए ना, कोई फायदा है क्या? बस मलाल तो इसी बात का है कि मेरी कमर सीधी नहीं होती। here, Bua's back is really bent. But then again, so are the backs of all poor working women. Their economic needs and social conditions do not allow them to walk straight and be proud. All poor working women are the same as Bua. The kind of work they do may be different, but she is typical of her kind. One Bua, many forms. देख बंदे देख सके तो देख बंदे देख सके तो देख रे बुआ एक रे रूप अनेक रे बुआ एक रे रूप अनेक रे कहीं ये भेड़ चराती है दूर से पानी लाती है कहीं बेचे बिंदी टिकुली गली में टेर लगाती है कहीं ये सब्जी बोती है कहीं ये फूल पिरोती है सड़क पर पत्थर कूटे कभी कहीं ये पत्थर ढोती है हाथ में पड़ जाती है ठेक रे देख बंदे देख सके तो देख बंदे देख सके तो देख रे बुआ एक रे रूप अनेक रे बुआ एक रे रूप
रूप अनेक रे। कहीं ये डलिया बुनती है, कहीं ये रुई धुनती है, कहीं पर काम सिलाई का, कहीं ये पत्ते चुनती है। काम घर के कितने सारे, उन्हें तो कोई नहीं गिनता। सुबह से शाम हुई है यहाँ लगी अब बच्चों की चिंता। लौट अब घर में रोटी सेक रे, देख रे। देख बंदे देख बंदे, देख सके तो देख बंदे, देख सके तो देख रे। बुआ एक रे, रूप अनेक रे। बुआ एक रे, रूप अनेक रे। कहीं सुजनी का धागा है, कहीं लकड़ी की ठुक ठुक है। बिकेगा माल सड़ेगा नहीं, लगी रहती ये धुक धुक है। श्रमिक हैं जितनी महिलाएं, सभी की अलग कहानी है। बुआ के जरिए सबकी बात यहाँ हमको समझानी है। ध्यान दे क्योंकि इरादा नेक रे, देख रे। देख बंदे देख बंदे, देख सके तो देख बंदे, देख सके तो देख रे। बुआ एक रे, रूप अनेक रे। बुआ एक रे, रूप अनेक रे। बुआ एक रे, रूप अनेक रे। There are so many issues which need urgent attention. Issues such as better social conditions for poor working women, improvement in their living conditions, availability of drinking water, provision of health and hygiene facilities, as well as general awareness. Here, we shall limit ourselves to discussing an improvement in their economic situation. Those women who are already involved in economic activities can do better if they are aware of some business principles. This is not to say that they are not competent or skillful. They are capable women, and once they are made aware of some basic guidelines, it would be of great benefit to them, and they could become a force to reckon with. Here comes Bua. She is shrewd and is aware of life's bitter truths, but not the truths of knowledge. She is alert, but does not have the expertise to run a business. She earns, but does not know how to increase her income. If Bua learns some basic principles of commerce, she can become a power in her own right. So, it is important to tell Bua a few things. तू क्या बताएगा? हमें अपने धंधे के सब गुर मालूम है। ग्राहक की नजर देख के ही ताड़ जाती हूँ कि माल कितने दाम में खरीदेगा और खरीदेगा कि नहीं। ये भी एक को बोला 2.5 रुपए किलो, 2.5 रुपया फट से निकाल के दे दिया। कुछ ऐसे भी काइयां हैं जो जब तक अठन्नी कम न करा ले चैन नहीं। तो भैया 3 रुपए किलो करा ले अठन्नी कम, तू खुश रह। तो क्या हुआ, इसको भी बेचा 2.5 रुपए किलो। ऐसी ना समझ नहीं हूँ मैं, तू मुझे क्या समझाएगा? Forgive me, Bua. There is no doubt that you are intelligent. But is there anyone in the world who can say that she is all-knowing? Even the wise can learn more. सो तो है भैया, लेकिन हम गरीबों की कौन मदद करेगा? किसके पास इतना टाइम है जो हमें धंधे के गुर समझाएगा? और तू कौन है गरीबों का मददगार? Bua, listen. I agree that the world is full of bad people, but the good still outnumber them. See, it is a matter of goodwill. You will meet Bhatiji, a magical niece. She will help you. भतीजी? आ जाने दो, उसे भी झेल लूंगी। अब तो मंडी का टाइम हो रहा है। जय राम जी की।
बुआ, ओ बुआ, भतीजी तुम्हारी, भतीजी मैं प्यारी प्यारी, छोटी हूँ फिर भी समझाऊँ मैं दुनियादारी, नहीं शर्माना है सत्य दिखलाना है, भतीजी तुम्हारी, भतीजी मैं प्यारी प्यारी, परेशानियाँ दुख तकलीफें जानूँ मैं सारी, तुम्हें समझाना है सत्य दिखलाना है। जादू मेरे पास है ऐसा सब कुछ पता लगा सकती, पलक झपकते जहाँ पे चाहूँ वहाँ पे फौरन जा सकती, भारत में जितनी भी औरत उनकी जितनी पीड़ाएं, पीड़ाओं की गिनती करके पल में तुम्हें दिखा सकती, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ फिरूं मैं बन के मतवारी, मतवारी हूँ मगर निभाऊं मैं जिम्मेदारी, सत्य बतलाना है तुम्हें समझाना है। क्या होता है काम का मतलब तू बेचारी क्या जाने, कितने घंटे लगी रही तू घर में जाने अनजाने, माँ पत्नी गृहिणी बनकर जो इतने सारे काम किए, कितना समय लगाया तूने मोल न इसका पहचाने, थकी तू नहीं लगी ही रही, बोझ है भारी से भारी, नहीं समझ पाई ये दुनिया है अत्याचारी, यही सुलझाना है तुझे समझाना है। बुआ, ओ बुआ, पति के दिखते काम मगर क्यों तेरे नजर नहीं आते, काम करे उससे ज्यादा फिर भी सब उसके गुण गाते, धन संपत्ति का मालिक वो ही हुक्म चलाता है, आंखों ही आंखों में उसके तेवर तुझको खा जाते, कहा कुछ नहीं मौन ही रही, ये शोषण सदा रहा जारी, धीरे धीरे फिरी तेरी गर्दन पे एक आरी, यही समझाना है सत्य दिखलाना है। जादू की डिबियाएं ले जब भी मुझे पुकारेगी, बस जमीन पर रगड़ेगी तो फौरन मुझको पालेगी, तेरे सभी सवालों का मैं हल बतला दूंगी फौरन, तेरी किस्मत तेरे हाथों तू ही उसे संवारेगी, और कुछ नहीं कहा बस यही रहे ना कोई लाचारी, खड़ी रहे अपने पैरों पर हो ये तैयारी, यही समझाना है यही बतलाना है। बुआ, ओ बुआ, चली मैं चली, बुलाएगी जब भी चली आऊंगी, डिबिया को रगड़ेगी आ जाऊंगी, बुआ, ओ बुआ, यही समझाना है यही सुलझाना है। अरे तू तो सच्ची आ गई, बताओ कमाल की डिबिया है। और भतीजी कमाल की नहीं है क्या? भतीजी तो और जोरदार है। अच्छा बता, कैसे बुलाया मुझे? बस ये देखने के लिए कि तू आएगी कि नहीं। बुलाने पर तो जरूर आऊंगी,
कभी कभी बिना बुलाए भी आ जाऊंगी बुआ। जब भी मुझे लगेगा तुझे मेरी जरूरत है, मैं बताने आ जाऊंगी। अच्छा जी, मुझे क्या बताएगी? ये बताऊंगी कि अगर औरतों को अपनी ताकत बढ़ानी है तो आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। जिस भी कारोबार में वो लगी हैं, उस पर अपना पूरा कब्जा जमाना होगा। कैसे? ऐसे। अरे छिप जा, मेरी भौजी और लज्जो आ रही हैं। घबरा मत बुआ, तेरी भतीजी तेरे अलावा किसी को दिखाई नहीं देगी। और जब तू और मैं बातें करेंगे ना, तो हमारी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देगी। जादू जो ठहरा अभी देख। बुआ राम राम। राम राम। अरे रुको, तुम लोग को कुछ दिखाई दे रहा है? कहाँ? ये परी नहीं दिख रही है क्या? अरे बुआ पागल हो गई है क्या? हम तो नाटक कर रहे थे। तुम लोग कहाँ जा रही हो? पल्ले गाँव। अरे फिर तो जल्दी जाओ, लौटते में देर हो जाएगी। जा रहे हैं बुआ। अच्छा बुआ राम राम। राम राम भौजी, राम राम। राम राम। देखा? अच्छा बुआ, अभी चलती हूँ। फुर्सत मिल जाए तो डिबिया घिस देना। फुर्सत मिलनी है तुझे। फूफा तो बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। हाँ, ये जब सोने लगते हैं म्यूजिक चालू हो जाता है। अच्छा बुआ बता, क्या बताया था मैंने तुझे? यही कि औरत को अपनी ताकत बढ़ानी है तो आमदनी बढ़ानी होगी। कैसे? ऐसे। ये जो चीज है ना बुआ, इसमें पूरा सार है। संगठन में बड़ी ताकत होती है। अगर गांव की तुम सारी मुर्गी वाली औरतें मिलकर एक ग्रुप बना लो, खुद मिलकर दाम तय कर लो कि इससे कम में नहीं बेचेंगे अंडे। हमारा गुट बना तो है, लेकिन निम्मो की अम्मा गड़बड़ कर देती है। सब मिलकर फैसला करोगी तो निम्मो की अम्मा अलग थोड़े ही जा सकती है। चल तू सो जा, मैं फिर आऊंगी। नींद नहीं आ रही है। आखिर तो देह है बुआ, सुबह से शाम तक लगी रहती है, थक गई होगी। चल तू सो जा, मैं बाद में आऊंगी। साड़ी ले लो, कोलकाता की भालो भालो साड़ी ले लो, खूब सस्ता साड़ी। धन्यवाद। कितनी साड़ियाँ बिक गई? बेशी कोथाय हरिहरपुर जाची ओ खाने बांग्ला शाड़ी खूब पसंद करे। दिखा तो। तुम्ही पड़बे, पहनोगी? हैं? दिखाची। ए देखो, ये साड़ी भतीजी को खूब भालो लगेगा। तुमने खुद बनाई है ये साड़ियाँ? नहीं, कलकत्ता से किन के आन ली। बनाए क्यों, बेचे क्यों, पोड़े क्यों? क्या बात कही है। बनाता कोई है, बेचता कोई है, इस्तेमाल करता कोई और है। जानवर पालता कोई और है, दूध पीता कोई और है। बुआ, हमारे मुल्क में औरतें आमतौर से 4 तरह का काम करती हैं। 100 तरह का करे, अमर की। बुआ, इसी बात पर तो ध्यान देना है। जब तक औरतें सारी बातों को जोड़कर नहीं समझेंगी, तब तक ताकत कैसे बनेंगी? ऐसे। देख बुआ, औरतों के कारोबार हैं 4 तरह के। पहला काम है जमीन से जुड़ा हुआ। जमीनेर काज। हाँ, औरतें खेती बाड़ी का काम करती हैं, खेत मजूरी करती हैं, चारा काटती हैं, कहीं सब्जी उगाती हैं। पानी लगाया जाता है,
जंगल लगाने और वृक्षारोपण का काम भी होता है, कहीं फूलों की खेती। तो ये सब काम है जमीन से जुड़े हुए। अच्छा, आगे बोलो। दूसरे काम है जीव जंतुओं से जुड़े हुए। जैसे कुछ औरतें बकरी पालती हैं, कुछ पालती हैं भेड़, कुछ हैं जो अंडों के लिए मुर्गी पालती हैं, कुछ महिलाएं दूध बेचने का कारोबार करती हैं, कुछ हैं जो मलबरी फार्मिंग का यानी रेशम के कीड़ों को पालने का काम करती हैं। समंदर से, तालाब से निकली मछलियों का भी कारोबार है। इसी तरह मधुमक्खी पालना भी जीव जंतुओं से जुड़ा हुआ है। এই কাজ তো বাবা রে বেশি বেকা। मधुमक्खी जदू शत्रुता करे तो बाबा रे बाबा कामड़िए कामड़िए मुंह फूलिए देवे। हर धंधे के अपने गुर होते हैं, पालने वालों को ये मक्खी नहीं काटती। तीसरी तरह का काम है बुआ उत्पादन का, कुछ बनाने का। जैसे कि तेरी ये साड़ियाँ, जिस किसी ने इसको बनाया, उत्पादन किया, तो तरह तरह की चीजें बनाने के काम में भी बहुत सारी औरतें लगी हैं। साड़ियाँ बेच रही है, ये है चौथी तरह का काम। क्योंकि ना तो ये जमीन से जुड़ा है, न जीव जंतुओं से और ना ही उत्पादन से। तो कहीं से खरीद कर लाती है और कहीं और बेचती है, अपना समय लगाती है, मेहनत लगाती है। तो इसी तरह होती हैं तरह तरह की सेवाएं। कुछ होटल रेस्टोरेंट में काम करती हैं, कुछ महिलाएं बेचने का काम करती हैं, जैसे सब्जी बेचना या फुटपाथ पर फल बेचना। कहीं बेचती हैं गन्ने का ताजा ताजा रस, तो कहीं रंग बिरंगी सुंदर सुंदर दस्तकारी की चीजें बेचती हैं। शिशु केंद्र चलाना भी इसी तरह की सेवाओं में ही आता है। कुछ महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करती हैं। दुनिया सब कथा तू जानिस। बुआ मैं कहाँ कुछ जानती हूँ, तू मुझसे अधिक जानती है। तेरे पास तजुर्बों का भारी खजाना है। मैंने तो कुछ किताबें पढ़ी हैं, तूने तो जिंदगी पढ़ी है। बाबा रे, आमी दुनिया सब ऊंच नीच देखेছি, कर्मेर लेखा भोगेছি। अच्छा, आर के लेखा আছে तोर किताबे? 4 तरह के कारोबार हैं, पहले इन्हें याद रख, बाकी बाद में बताऊंगी। हमारे मुल्क में औरतें 4 तरह का काम करे से। पहला तो हो गया जमीन का काम, जैसे खेती बाड़ी, फूल का काम जैसे हम लोग करे हैं। और दूसरा हो गया जानवर का और कीड़े मकोड़े का। और तीसरा हो गया पुतपा, हाँ पुतपा का काम। हुआ पुतपा क्या हो वैसा? हुआ उत्पादन। उत्पादन का काम। अच्छा मैं अभी आऊँ। वेरी गुड बुआ, तू तो समझाने भी लग गई। अभी परफेक्ट कहाँ हुई सू? अरे परफेक्ट भी हो जाएगी। सुन,
4 तरह के कामों को 4 तरह से ही सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है काम को बढ़ाना, मतलब कि काम का जाल बिछाना। जाल बिछाना के हुए? फूलों की खेती करने वाली कितनी महिलाएं हैं तेरे ग्रुप में? तकरीबन 10। किस भाव बेचती हो फूल? अलग अलग फूल के अलग अलग दाम। जैसे ये वाला 10 रुपए केजी। कौन ले जाता है? सभी लोग ले जाते हैं। मंदिर के काम भी आता है, मंडप पे भी जाता है, मालाएं बनाने के भी काम आता है। तुम लोग नहीं बनाती मालाएं? हमारे पास टाइम कहाँ है। अरे तो एक ग्रुप ऐसा बना लो जो मालाएं बनाए, यहीं तुम्हारे साथ बैठकर या कहीं और। तो बीच का आदमी जो खाता है उससे तो बचत हो जाएगी। फूल क्यों बेचो, मालाएं बनाकर बेचो। अच्छा बता, और किस काम आते हैं तेरे फूल? और यही दवाई वाई के काम आता है। ये गुलाब है, ये है गुलकंद के काम आता है। तो गांव की महिलाओं को मिलाकर एक ग्रुप ऐसा बना लो जो गुलकंद बनाने का काम करे। क्या कह रही हो? हमें गुलकंद बनाना कौन सिखाएगा? बुआ, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मन में ठान लो तो गुलकंद बनाना भी आ जाएगा। इतनी संस्था वाले आते हैं, कहो किसी से कि गुलकंद बनाना सीखना है। तो ये हुआ काम का जाल बिछाना, मतलब कि एक काम से लगे हुए दूसरे कामों को जोड़ना। हाँ, अच्छा। Bhatiji goes to every Bua. First she understands the matter for herself and then explains it. For example, networking of workforces means the working together of women's groups to form an organization and therefore earn more. अब जाल बुनने वाली बात मुझे बता। काम कोई सा भी हो बुआ, ढंग से अगर किया जाए, जाल बिछाया जाए तो औरतों को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हम में से हर जनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन कैसे? वो ऐसे कि अभी तो तुम अपना माल देती हो व्यापारियों को, तुम खुद अच्छी पैकिंग करके ग्राहकों को सीधा बेचो। लेकिन सीधा ग्राहक हमारे पास आएगा कैसे? ऐसा करो, बाहर एक दुकान खोल लो, अपने ग्रुप की महिलाओं को कहो उसे चलाएंगी। तो ये होता है जाल बिछाना। पहला सुधार तो हुआ काम का जाल फैलाना, और दूसरा सुधार हुआ काम को संवारना, उसको बेहतर बनाना। मुर्गियों को अच्छा दाना दोगी, साफ पानी दोगी, सफाई रखोगी तो मुर्गियां तंदुरुस्त रहेंगी, और बुआ अंडे भी उम्दा देंगी। दाम भी बढ़िया मिलेंगे। अच्छे अच्छे नए नए बीज लाओगी, खाद का पानी का इंतजाम रखोगी तो फूल बढ़िया आएंगे, ऐसे थोड़ी मरियल से। अपनी टोकरियां नए नए तरीके की बनाओ, ये एक जैसी कब तक खरीदेंगे ग्राहक? अपने काम को संवारो। तीसरी बात है उसी काम धंधे से ज्यादा आमदनी। जब भैंसों को अच्छा चारा देकर उनकी अच्छी देखभाल करके काम संवार लिया तो दूध भी अच्छा मिलेगा। अब दाम बढ़ा दो। मालकिन से कहो बर्तन धोती हूँ, झाड़ू पोंछा लगाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, पगार बढ़ाओ मेरी। मालकिन मेरी पगार बढ़ाएगी? कभी नहीं। कहकर तो देखो, वरना कह दो प्यार से, बीवी जी मुझे कहीं और काम मिल रहा है, उसकी गरज होगी तो जरूर बढ़ाएगी। ये देखो, ये डब्बा मंगवावा, यहाँ भी रखी। तुमने अच्छा किया, अब तुम इन पर लेबल भी लगा सकती हो, बुआ का अचार, और अचार का दाम भी ज्यादा रख सकती हो। इन डब्बों के पैसे तो मिलेंगे ही, साथ में ज्यादा मुनाफा भी होगा। तो क्या हुआ, काम वही रहा और आमदनी ज्यादा हो गई। आमदनी कैसे ज्यादा हो गई? काम को संवारने से। अब चौथा सुधार बता। बताती हूँ। चौथा सुधार है एकदम नई कारोबारी। नई कारोबारी? हाँ, एकदम नई कारोबारी।
मतलब कि जो काम तूने अभी तक नहीं किया वो काम जो कि यहाँ चल सकता है। जैसे तू बता। जैसे कि आजकल गर्मियों के दिन है, तू टोकरियाँ लेकर चौक में बैठती है, साथ में घड़े सुराहियाँ भी रख ले। टोकरियाँ तो बिकती ही हैं, घड़े सुराहियाँ भी बिक जाएंगी। हुई न नई कारोबारी। और भतीजी, हम लोगों के लिए या हमारे ग्रुप के लिए कोई नई कारोबारी? नई कारोबारी तो कुछ भी हो सकती है बुआ, बस ध्यान ये रखना है कि वो नया कारोबार या धंधा यहाँ चल सकता है कि नहीं। अच्छा बता, तेरे गांव में कोई मधुमक्खी पालता है क्या? वो तो कोई नहीं पालता, बरगद के पेड़ पे अपने आप छत्ते लग जाते हैं। तो शुरू कर दो ये धंधा, या कोई और भी नया धंधा। यहाँ पौधों की रखवाली करते हुए तुम्हारे पास समय होता है, टोकरियाँ बनाना सीख लो, तुम्हारा मन भी लग जाएगा और नया कारोबार भी खुल जाएगा। अरे मन लगने की बात मत कर, दिन भर इनकी क्या में दिन कहाँ निकल जाता पता ही नहीं चलता। नया कारोबार? तौबा करो जी तौबा। तौबा करें आपके दुश्मन। अपनी मुर्गियों के साथ कुछ बकरियां भी पाल लीजिए, थोड़ी सी कैं थोड़ी सी मैं। बकरियां? अरे हट, दिन भर उनके पीछे पीछे कौन भागेगा? ऐसा हरा मैदान है आपके पिछवाड़े, लंबी रस्सियां लेकर खूंटे से बांध दीजिए। अच्छा चलिए छोड़िए, बकरियां नहीं तो कोई भी ऐसा धंधा जो आपके गांव में नहीं होता हो, या कोई भी नई कारोबारी जिससे आपकी आमदनी बढ़े। लगता है आज फूफा घर पर नहीं है, तभी आराम से सो रही है। अरे तेरे फूफा मेरे आराम में क्या खलल डालेंगे? आज तारीख है, पटवारी के यहाँ गए हैं। अच्छा बुआ बता, मैंने कौन से 4 सुधार बताए थे? पहला तो बताया था नया कारोबार करना। एकदम नया? हाँ, एकदम नया कारोबार। लेकिन ये पहला तो नहीं है, पहली बात तो कुछ और थी। काम को संवारना। हाँ, फिर कौन सी बात बताई थी? फिर बताई थी, फिर कौन सी बात बताई थी? इतने विस्तार से बताया था, इतनी जल्दी भूल गई सब कुछ। बताया जो भी ध्यान दियो बुआ प्यारी, बताया जो भी ध्यान दे।